So for our next panel discussion, very important panel discussion, business expectations and ERP, and then also the future technologies. To moderate this panel discussion, I would like to request Mr. Faisal Kamar, Managing Director, HRSC, BPO, and Chief Executive, Decibel HCM Solution. Faisal sir, please come on stage. Please welcome Faisal Kamar sir. Everyone. Good afternoon, everyone, and thank you, Ghulam Saab, for putting up another wonderful show. हम अपने panelists को जो है जल्दी बुलाते हैं. We have a very rich panel. सबसे पहले मैं request करूँगा गुलाम हसनैन नासिर साहब से please तशरीफ़ लाएं. तालियां सबके लिए बजनी चाहिए. ये जो है वो 5 सेकंड की एक्सरसाइज है, लेकिन आने वाले का दिल बड़ा हो जाता है. और ताली हमेशा मैं HR का आदमी हूँ, तो तालियों के लिए मैं 2 KPI रखता हूँ कि दिल से बजानी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए आसपास कोई है, फिर ताली बजती है ठीक. तो साथ ही सी बुशरा हनी फारूकी साहिबा, उसके साथ सुहेल सवानी साहब, ज़िया सईद साहब और जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ियाद चौधरी साहब. सबसे पहले जो है ये पोस्ट टी सेशन है. इस सेशन में आई एम श्योर अभी सेटलिंग डाउन टाइम होगा. इस सेटलिंग डाउन टाइम को हम मैनेज कर लेंगे. अगर आप सब लोग हाथ ऊपर उठा के दिखा सकते हैं कि यू एग्जिस्ट. सारे लोग अगर बता दें दे एग्जिस्ट. आई जस्ट वांट टू नो दे एग्जिस्ट. There are certain people who are thinking, whether we exist or we don't. Do we exist? Some tables are still thinking, to lift hand. एक हाथ कर दें. Convenience एक हाथ की भी ठीक है. चलें जी, इसका मतलब है कि everyone is right here. सुबह के discussion में my favorite was सजाद साहब की speech. He was very candid, very straight, and उसके बाद अहमद ने जैसे उसको compliment किया और आखिरी में जो क्लोजर राशिद साहब ने किया, इट वाज ब्रिलियंट. उन्होंने ये कहा कि भाई अब ऑन प्रेम को हाथ जोड़ लें, और अगर ऑन प्रेम का ROI नहीं बनाना आता तो वो भी आज हमने पढ़ा दिया है. सो इंडस्ट्री को कहना सिर्फ ये है, जो CIOs बैठे हैं यहाँ, कि एट द एंड ऑफ द डे हम जितनी मर्जी चेंज रेजिस्टेंस कर लें, हमने इवेंचुअली क्लाउड पे जाना है. ये जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ठीक है. जितनी जल्दी रीज़न बताते रहेंगे कि जी ऑन प्रेम की रीज़न ये है, सिक्योरिटी है, ये अंग्रेज़ी है, वो अंग्रेज़ी है, इट इज़ नॉट रेलेवेंट एट ऑल. मार्केट साइज क्लाउड का 2025 की प्रेडिक्शन में इट्स गोइंग टू बी $842 बिलियन. IoT की मार्केट उन्होंने बताई, IoT की मार्केट इज़ गोइंग टू बी $1.1 बिलियन बाय 2023. और जो ई कॉमर्स की मार्केट की बात हो रही है, इट्स गोइंग टू बी $16.64 बिलियन बाय 2028. So let's have a clear commitment. हमने अपने पैनल से एक जो है सबसे पहले हम क्विकली इंट्रो लेंगे. सर आप सब लोग अगर अपना इंट्रो करा दें जल्दी जल्दी. Assalamu alaikum. Good afternoon. My name is Ghulam Hussain Nasir. I'm the Vice President for Telenor Pakistan, looking after B2B business. I'm also heading the IoT sales channel, also the enterprise solution. So with Telenor since launch, it's been 17 years with Telenor Pakistan, and before I worked for ICI Paints. Thank you, and happy to part of this panel. Thank you. Great. Thank you, Faisal. A very good morning to all of you. I am Bushra, and by profession I am a qualified chartered accountant, and I have my majors in economics as a master's in economics as well. I have experience of more than 14 years in the industry with diversified sectors like banks, pharmas, FMCGs, textiles, healthcare, and NGOs of Pakistan. And for the last 5 years, I have been serving as CFO in various sectors. Currently, I have been the CFO of Lady Dufferin Hospital. Thank you. Thank you. Hello. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Suhail Sultan Ali Sawani. I am working in Genix Pharma as a Deputy Director. I am heading supply chain and information technology there. I have 22 years of experience in pharmaceutical, hospitals, and manufacturing concerns. Thank you. Assalamu alaikum. This is Zia Saeed Khan, or I am
Head of Distribution and SFE in Martin Dow Limited. I have more than 16 years experience in a pharmaceutical industry, more or less operational and commercial supply chain. और देखा जाए तो अगर ERP से रिलेवेंस जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मोर देन 3 लाइफ साइकिल्स का है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ के साथ, नोवार्टिस, GSK और मार्टिन डॉ लिमिटेड के साथ. थैंक यू. जी, थैंक यू वेरी मच. मेरा नाम ज़ियाद चौधरी है. मेरा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है पिछले 16 साल से. मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज CFO एट नोवार्टिस. ग्रेट जी. और हमारे पास पैनल के लिए जो टाइम था हमने उसको रिड्यूस कर दिया है. हम कोशिश करेंगे कि हम 20-25 मिनट में रैप अप करें. तो देयर इज़ गोइंग टू बी 1 राउंड ऑफ क्वेश्चन, और इस 1 राउंड ऑफ क्वेश्चन के हवाले से हमारा सवाल सारे ही पैनलिस्ट जो यहाँ मौजूद हैं उनसे 2 डायमेंशन में है. एक डायमेंशन में ये है कि जी आपका जो ERP का एक्सपीरियंस रहा है, क्या ERP में चेंजेस हम देखते हैं जो आज से 10 साल पहले के या करंट ERPs हैं वर्सेस जो इस डिस्रप्शन और पोस्ट कोरोना में ERP होने जा रहा है. और दूसरा ये कि ERP के इंटरनल फैक्टर क्या हैं. इंटरनल फैक्टर का मतलब ये है कि जी हमारी रेडीनेस कितनी होती है, हमारे कल्चर का कितना रोल है, हमें नॉलेज कितनी बेहतर चाहिए. हसनैन ने बड़ा अच्छा मुझे वहाँ पे कोट बताया कि जी IT का वर्ड दुनिया से ख़त्म हो गया है, अब टेक का वर्ड शुरू हो गया है. और टेक खाली IT नहीं होता, वो सबको टैग होना पड़ेगा जो है इस हवाले से पूरा करने के लिए. तो इसी सोच के साथ हम चाहेंगे कि सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि सबके लिए बेनिफिशियल हो. आखिरी में कुछ की पॉइंट्स हम निकालेंगे ताकि जो है थोड़ी सी लर्निंग भी हो और हम आगे भी बढ़ें. जी, स्टार्टिंग विद हसनैन So प्लीज. thank you, Faisal, and thank you for having me here. So my experience, मैं इसको बताना चाहूँगा मैंने सजाद साहब की और अदर कोलीग्स की डिस्कशन सुनी रिलेटेड टू द ERP, एंड वाइडली सब लोगों ने इसको बेहतर तरीके से कवर किया. बट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है, मैं आई मोर टच रिलेटेड टू द टेलको पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाट आर दी हाउ टेलकोज आर सपोर्टिंग कस्टमर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को. जब हमारा कांटेक्ट होता है, आई एम श्योर ERP और अदर सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी डिप्लॉयड, बट व्हाट वी फील जो द बिगेस्ट चैलेंज इज़ कि हम लोग इसको बेहतर कैसे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, बिकॉज कोविड इट्सेल्फ अ गेम चेंजर फॉर अक्रॉस ग्लोब. सो कोविड में जो चीज़ें आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान की हुई थी, तो वो मेरा ख्याल है इमीडिएटली ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स हैपनिंग. और मेरा ख्याल है इसमें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसको अडॉप्ट कैसे किया जा रहा है. मेरा ख्याल है पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, एंड वी हैव हैड एक्सपीरियंस विद द ऑर्गेनाइजेशन. और हम वी आर सीन आवर सेल्फ जो ऑर्गेनाइजेशन ई-कॉमर्स में अपने आप को ग्रो कर रही हैं, और विद इन ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इंटीग्रेशंस की हैं. सो जो सज्जाद बात कर रहे थे बाकी ऑर्गेनाइजेशन, नाउ मेरा ख्याल है जो एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली सब कुछ नहीं कर सकती. इज़ नाउ फ्यूचर इज़ पार्टनरशिप्स. सो वी हैव टू कोलैबोरेट विद ईच अदर विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जब आप बात करते हैं किसी भी सोल्यूशन को डिप्लॉय करने के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो जो सोल्यूशन है, द 3 मेजर कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ सिंपल, बेटर एंड फास्टर. The product is simple, easy to understand, better is reliability, and faster is robust experience for customers. और जो organizations में जितनी भी change आ रही हैं, why they are changing, why they are deploying such solutions, that is only because of customer consumer demand. It's not possible कि आप खुद से ये चीज़ें कर रहे हैं. And secondly, विद इन जो कस्टमर्स आपके जो होते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आपके एम्प्लॉयज़ आर योर कस्टमर्स. सो फिर देन यू आर फेसिंग चैलेंजेस, और उसके बाद करते हैं फॉर एंड फ्यूचर इज़ द मोबाइल हैंडसेट. सो एवरीवन वांट्स टू सी कि जी मोबाइल के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएं. सो इमेजिन आज से पहले जब पाकिस्तान में जब मोबाइल सर्विसेज लॉन्च हुई थी, वी वर टॉकिंग अबाउट मिनट्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिनट्स, मेगाबाइट्स एंड मोमेंट्स.
Now the future has changed. The movements is real time में आपको सारी services चाहिए. Real time में data की बात हो रही है. So ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं जब हम लोग अपने organization में collaboration and जो deployment of the solution है वो इतना बेहतर करें और उस पे अदर प्रोडक्ट्स और जो जिस तरह बात हुई है सुबह IoT की, फ्यूचर इज़ IoT इज़ क्लियर, बट फ्यूचर इज़ IoT से आगे की जो चेंजेस आ रही हैं विच इज़ NB-IoT, नैरो बैंड IoT पे डिस्कशंस होने जा रही हैं. सो फॉर आर मैं दो तीन चीज़ें ज़रूर इधर शेयर करना चाहूँगा. व्हाट वी आर डूइंग एज टेलेनॉर, we are very much in IoT and we are one of the leading telco currently in IoT space because we have a very vast experience keeping in mind our presence in 13 countries and all the major countries are in IoT space. Also the enterprise solution. We are supporting government, we are supporting private organization. Recently, from the last 2 years, we had a partnership with Unilever. They had certain challenges जिसको हमने support किया through our IoT, जहाँ पे उनको challenge था कि जो उनके deep freezers हैं वो जो retail से हैं वो गायब हो जाते हैं, and also the chiller monitoring challenge. So we actually fixed this challenge through our IoT sensors. Also जो government की बात कर रहे थे digitization की, automation की, recently आपने देखा होगा और काफ़ी ज़्यादा इसकी advertisement हुई है. चीफ मिनिस्टर पंजाब ने रेस्क्यू 1122 को वी कम्प्लीटली डिजिटाइज, हमने उनको ऐप भी डेवलप करके दिया है, उनका जो कॉल सेंटर मैनेजमेंट है उसको क्लाउड पे लेके चले गए हैं. एंड थर्डली अगर आपको इमरजेंसी सर्विसेज चाहिए तो जस्ट आप डायरेक्टली ऐप से कॉल कर सकते हैं एंड ऐप आपको डायरेक्टली कॉल देगी. जो नियरेस्ट एम्बुलेंस है या नियरेस्ट कोई भी जो उनकी जो मोटर बाइक है उस पर कॉल चले जाएगी और राइडर और जो एम्बुलेंस है डायरेक्टली आपकी जो लोकेशन है उस पर जाएगी. और ऊबर और करीम की ऐप की तरह आप देख सकेंगे कि वो कितनी टाइम पे एम्बुलेंस आपके पास पहुँचे. दीज आर दी रियल केसेस जहाँ पे आपको पता चलता है कस्टमर, कंज्यूमर या गवर्नमेंट की डिमांड क्या है. अगर और इट्स ऑल अबाउट, इट्स नॉट ओनली IT. यस, मैं आई वॉज शेयरिंग विद यू कि ऑर्गेनाइजेशन में IT का वर्ड ख़त्म हो गया है, अब टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने सबको लेके चलना है. इट्स ऑल अबाउट सबसे पहले इंटरनल चेंज होने की ज़रूरत है रादर देन आप कस्टमर के पास जाएं. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन वो बात की बात है. द फर्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम इंटरनल चेंज लेके आएँ and the simple, better and faster solution for the organizations. Great जी, thank you very much. और एक myth break होनी चाहिए कि Oracle, SAP, Decibel, they can provide the solution together. Instead of we are sticking to it कि मैंने खरीद लिया तो मैं इसके साथ 3 और नहीं खरीद सकता, and I have to get everything from one system. So we move on to Bushra. Please share your views about it. I would like to answer the question कि what was ERP 10 years ago and what is ERP today. 10 years ago, ERP was used as data collection and gathering and integration tool and to generate standard reports. But now the role has been evolved very much. It's from data collection to data analytics. And it's not working. I would say that data analytics, it's not a word, it's a world. You can do everything. You can play with the data. Yes, you should know how to play with it. It's important. If you don't want to play, it's just a data for you. With the data analytics, you can do forecasting, you can do budgeting, you can do dashboarding, you can do predictions, and dashboard is something very close to me. It's like you can see the performance of each and every department using a dashboard. It's just a one pager, it's on front of you, and you can see how was the performance of whether it's supply chain, whether it's procurement, whether it's your marketing department, sales department, finance, HR. So dashboard is fantastic. Right now people are using this ERP for collaborations, and collaboration is a very important aspect of business these days. Businesses join hand together, they become business partners to have a competitive edge over other businesses, to take a mutual advantage. So ERP is used a very different way. It was used like 10 years ago, and the role of ERP cannot be avoided in the modern world today. Lot of transformations, lot of customization has been done in ERP, and there's the potential is still to be tapped yet. It's not fully, I think so, utilized or tapped.
And second question is the readiness of the organization with the implementation of ERP. It's unfortunately very poor. The ERP implementation is unfortunately left on the CIOs and the CFOs of the hospital, and the rest of the departmental head are just the audiences to see the live streaming or the implementation of the. And here is the issue where the gap between what the business expect and what the ARP is capable of being delivered exists. So the problem lies with the culture, the mindset. The people are tech scary. They don't want change. They don't see ERP as a journey to the excellence, but they see ERP as a journey to their homes. They become job insecure. So in Pakistan, point. the ERP implementation is more a forceful implementation from the top management rather than a collaborative or a collective efforts. And even on the top, on the BOD level, they think this is just a wish list of the CFOs and CIOs. It's nothing like it. They are also a partner of implementation of the ERP, unfortunately. Great, very candid feedback. एक पोल क्वेश्चन हम कराएंगे, आप सबसे पूछेंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे. 5 चीज़ों को मिनिमम ERP कहा जाता है. वो जो गुलाम साहब ने सुबह बताया कि लोग पेरोल को ERP कहते हैं, वो मैं पिछले 12 साल से बेच रहा हूँ. 2-2.5 लाख पे स्लिप में बना लेता हूँ. लेकिन जो ERP की 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें आप फाइनेंस डाल लें, HR डाल लें, सप्लाई चेन डाल लें, प्रोक्योरमेंट डाल लें और 5वीं कोई और चीज़ उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें. इनको आप ERP कह सकते हैं. मुझे सिर्फ पोल क्वेश्चन आखिरी में चाहिए, या इंक्लूडिंग ऑल वेंडर्स और कस्टमर्स, कितने लोग हैं जिनके पास ये ERP लगा हुआ है क्लाउड पे? बस ये आखिरी में हाथ उठा के बता देना है, ताकि हम सब यहाँ पे वेंडर्स बैठ के ये असेसमेंट कर सकें कि अपॉर्चुनिटी कितनी है इंडस्ट्री में, और इंडस्ट्री ये इवैल्यूएट कर सके कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम करना है. वील डू इट एट द एंड ऑफ द सेशन. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स यू सर, प्लीज़. वेल फैसल साहब, आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली वो मैं जेनेक्स फार्मा की लाइफ स्टोरी से कवर करूँगा. जेनेक्स फार्मा इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन एंड बेसिकली वी आर द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने SAP S/4HANA राइस पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया. एंड थैंक्स टू SAP टीम, आई थिंक Shumail, आई एम सीइंग द Shumail, दे आर द पीपल हु कन्विंस्ड अस टू गो देयर. So basically the 10 years, in the last 10 years we had the ERP software, and again जिसके अंदर पूरे payroll और इस टाइप की चीज़ें आती थी. The last ERP which we are facing basically, अगर मैं बात करूँ तो वो manufacturing process के लिए था, enterprise process के लिए नहीं था. And when we talk about the enterprise process, it's basically enumerate, you can say material management, supply chain management, quality, operations, distribution, SD, and a lot of function, and we want all these functions to be integrated. These things were evolved in the last 10 years. Secondly, as the human resource are evolving day by day, so human resource needs controls with, you can say, with approval mechanism. So now the ERPs are giving us the controls and approval mechanism, as we listened the morning keynote speaker, in which they told us how the system stops before it malfunction. Next, servers, cloud concept is there. No servers, no DRS, no backup, no thing. Let the best men do their job. तो वो हमने cloud के ऊपर देख ली. इसके बाद, since I am from a pharmaceutical industry, the pharmaceutical is a very regulated industry. We required audit trail of each and every material. We need किस दिन आया, कौन सी GRN से बना, किस PO से आया, किस customer को हमने कौन सा batch दिया है, किस तरह दिया है. So this was eventually the problems which the previous ERPs were not addressed. Now, alhamdulillah, things are there. Our implementing partners were Supernova Solution. I am seeing Hakeem Saab. They also have the first experience with us of implementing SAP Cloud, and thanks to their support, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. Future ERPs की अगर मैं बात करूँ तो I think हमें जब readiness करना चाहिए तो it's very important first to do your BPR. Business process reviews are very important. Complete the BPRs, then do the iterations. Iterations are very important, as Genix did. And then keep a big time for UAT, user acceptance test, as our company allocated 45 days for the UAT. Believe me or not, that makes our life easy. We closed last ERP on 28th December, and on 2nd January, we got live for the new ERP. So this is the key lessons which I think I should narrate to you. Thank you very much. थैंक यू. आज जो मैं आप डिस्कशन देख रहे होंगे कि एकदम ये क्या हुआ है.
हाँ जी, हैरान हो गए ना। अभी 1 मिनट पहले इधर फैसल कमर खड़ा हुआ था, ये मौलवी आ गया गुलाम मुस्तफ़ा। तो फैसल साहब हैड टू कैच अ फ्लाइट, सो आई एम रिप्लेसिंग हिम। ओके फाइन। मैं जो है लास्ट 10 ईयर्स से अगर देखें तो हमने मोस्टली ERPs इम्प्लीमेंट किए, और हमने ये सोचा कि हम जो 10 ईयर्स से यानी जो ERP इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये वन टाइम इम्प्लीमेंटेशन है और हमारा जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। असेसमेंट ये की गई कि अगर हम हर ईयर बाय ईयर अपने ERP को वर्सेस बिजनेस नीड जो है वो रीवैल्यूएशन करते रहें तो हमारी बिजनेस नीड जो है वो फिक्स होती जाएंगी। इन केस के अगर हम 5 to 10 ईयर्स के बाद अगर हम पीछे देखते हैं तो हमारी बिजनेस जो नीड्स हैं, जो इनोवेशंस हैं, या जो हम न्यू इमर्जिंग मार्केट्स में जो है पेनिट्रेट कर रहे हैं, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है। हमारा ERP उसी इम्प्लीमेंटेशन के साथ खड़ा हुआ है जो कि हमने लास्ट 10 ईयर्स बैक इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो एट द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम अपग्रेडेशन नहीं करेंगे ERP में तो बिजनेस नीड्स और ERP की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में खड़ी होगी। तो या तो ये कि आफ्टर 10 ईयर्स हमें अपना ERP रिप्लेस करना पड़ेगा, अदर देन दिस, या फिर उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। एक तो ये, और दूसरी बात ये कि फार्मास्यूटिकल से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है 650 बिलियन की मार्केट है और अराउंड 600 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान काम कर रही हैं, जिसमें मोर देन 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और अराउंड 60,000 मोर देन 60,000 फार्मेसीज़ हैं। जब हम अपनी कमर्शियल सप्लाई चेन की तरफ बात करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एंड मोर ओवर जो है वो फार्मेसीज़ के साथ। तो हमारे पास प्राइमरी सेल्स से पे रिप्लेनिशमेंट और सेल्स होती है, सेकेंडरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर पे रिप्लेनिशमेंट और सेल्स होती है, इसी तरह से टर्शरी लेवल पे। अगर देखा जाए तो अक्रॉस दी टिल दी एंड टू एंड अगर हम इसको देखें तो बीच में कोई कनेक्शन जो है वो बिल्ड नहीं हो सका सिंस लास्ट 10 ईयर्स में। तो हमारा जो CRM का जो मॉडल है, जो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई इंटीग्रेशन नहीं है। तो अब हमारे पास जो सेल्स रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं या हमारी जो रिप्लेनिशमेंट साइकिल जो है वो उसकी प्रिडिक्शन में, उसकी फोरकास्टिंग में डिलेज हैं, जिसकी वजह से एक तो पेशेंट सफ़र करता है एट द एंड ऑफ कस्टमर। अगर देखें पॉइंट ऑफ सेल्स का डेटा नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर के लेवल पे क्या सेल हो रहा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आफ्टर 24 आवर्स जो है वो इंडस्ट्री को पता चलती है। तो ये एक चैलेंज है। अगर हमने काफ़ी इस पे काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन हमें अभी तक जो सॉल्यूशन है वो नहीं मिल सका। तो मैं यहाँ एक ये ओपन एक चैलेंज जो है वो हम फेस कर रहे हैं, नॉट ओनली मार्टिन डाउ लिमिटेड, मैं समझता हूँ कि तमाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ से कराची से स्कर्दू तक मैंने ट्रैवल किया है और तमाम कंपनीज जो हैं ये सेम प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर इसमें हमारी जो है वो हेल्प करे ERP से रिलेवेंट जो टेक्निकल लोग हैं, तो हम इसमें बेटर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये देखें जी, बिजनेस आ गया है सजाद साहब, और जो बकाया बैकस वाले इधर बैठे हुए हैं और जो ERP इम्प्लीमेंटर्स हैं, ये खड़े खड़े बिजनेस दे दिया इन्होंने। मार्टिन डाउ ओपन कह रहा है जी हमारा सोल्यूशन है, हमें प्रॉब्लम है, कोई हमें सोल्यूशन दे दे। सर ये नोवा वाले भी आ गए हैं, अभी उन्होंने एक प्रॉब्लम शेयर किया है ये इन्होंने, तो वो आई होप आप लोगों की टीम सुन चुकी होगी। तो सर वो मेरा यही काम था सर, कनेक्ट कराना, बाकी 10% आप जहन में रखिएगा। जी सर, जय सर। राइट जी, बहुत शुक्रिया। सो जब भी हम ERP सिस्टम्स का सुनते हैं तो मैं कहीं एक जगह पढ़ रहा था कि उनको मिसकंसीव किया जाता सर है। माइक जरा करीब। अभी बेहतर है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ERP सिस्टम से सुनते हैं तो एक जगह मैं पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम उसे मिसकंसीव करते हैं एज कंप्यूटर सिस्टम्स। रादर दीज आर पीपल सिस्टम्स, only supported and driven by or made possible by computer software and hardware. So I think ये बड़ी की है और इसी के अंदर वो सारी बात है जो मैं इधर करना चाह रहा हूँ, जो मैंने अपनी जर्नी में देखा। और ये राशिद साहब सामने बैठे हैं, इनके साथ इन्होंने बहुत सारी SAP की इम्प्लीमेंटेशंस की और पूरी एक जर्नी में हमने जो देखी हैं, ख़ास तौर से कोविड के बाद जो एक चीज़ रियलाइज़ की कि एक तो डेटा इंटेग्रिटी और दूसरा जो आउटपुट है कि वो कितना यूज़र फ्रेंडली चीज़ हो। इस वक्त हमारे दोस्त जो बैठे हैं वो मेरे ख्याल है उसको और कंफर्म करेंगे, तकरीबन 190 मिलियन मोबाइल फ़ोन के यूज़र्स हैं
जिसमें से कोई 110 मिलियन के पास डेटा एक्सेस है इस वक्त, और जिस तेज़ी से ये बढ़ रहा है उतनी तेज़ी से लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सेस भी करनी होगी। और वो आसानी जो है, वो जो अब इन सिस्टम्स में एक इंटीग्रेशन के साथ हम देख रहे हैं, ये एक वो चीज़ है जो आगे मैं समझता हूँ कि एक की एलिमेंट होगा कि आउटपुट कैसा है। दूसरी एक चीज़ कि एक्सेसिबिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, कि हम एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में नोवार्टिस एग्जिस्ट करती है, सो सारा डेटाबेस लिंक होना और स्टैंडर्डाइज्ड होना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ रियली ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस अगर मैं इसको सम अप करूँ, सो एक इंटेग्रिटी, दूसरा स्केलेबिलिटी और जो आउटपुट है, and third जो कि overall standardization. So basically these are the some of the important factors. Excellent, thank you very much. I would like to request audience, if you have any questions, if you like to ask anything from the honorable panel members. Okay, so हम एक क्वेश्चन सर और पूरे उसमें रन करेंगे, उसके बाद वी आर क्लोजिंग दिस कॉन्वर्सेशन। मैं आप लोगों से अंडरस्टैंड ये करना चाह रहा था, एनीबडी कैन टेक दिस क्वेश्चन, कि आप लोगों का क्या एक क्लियर मैसेज होगा टू ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स? सर जी, मैंने तो जो बात की, मेरा मैसेज भी यही होगा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह एप्लीकेशंस आपस में एवरीथिंग इज टॉकिंग टू ईच अदर, सो इसी कम्युनिकेशन और इसी इंटेग्रिटी के साथ कि वो सिस्टम इंटेग्रिटी इंश्योर हो और उसके साथ कनेक्टिविटी हो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में इन दी बैकग्राउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसका जो आउटपुट है वो कितना यूज़र फ्रेंडली और कितने आसानी से एक्सेस हो सकता है, ऑल्सो कितनी तेज़ी से, कि उसमें लैगिंग नहीं हो और तेज़ी से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। सो आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुलाम हसनैन साहब से, आप लोगों ने रिसेंटली टेलीनॉर ने, आप टेलीनॉर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टेलीनॉर अभी रिसेंटली क्या बिजनेस ऐप्स के थ्रू क्या हेल्प कर रहा है बिजनेस को टू फर्दर इन्हेंस देयर सेल्स, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी? या सो गुलाम, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, वी आर ऑफरिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस। द चैलेंज वी आर फेसिंग, जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो इंटीग्रेशन आती है। तो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी ओपन आवर APIs. सो वी आर ऑफरिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशंस के जहाँ पे मैंने कोलैबोरेशन की बात की है, देन वी कैन इंटीग्रेट विद दी अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। सो दो अभी ये जो चीज़ है जो मैं फार्मास्यूटिकल के लिए भी है ना, वी हैव ए सोल्यूशन, कंप्लीट सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है, वहाँ पे आप इन्वेंट्री भी देख सकते हैं, ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो इस ऑल सोल्यूशंस आर अवेलेबल नाउ। इवन जो मैं कोविड की बात कर रहा था, आपने देखा होगा कोविड में ई-कॉमर्स को बहुत ज़रूरत हुई। आप लार्ज सेटअप कॉल सेंटर्स नहीं बना सकते। वी लॉन्च्ड ड्यूरिंग कोविड 2 years बैक अ क्लाउड बेस्ड स्मॉल कॉल सेंटर विच इज़ अ वर्चुअल PBX कॉल सेंटर, और उसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और इवन फार्मास्यूटिकल्स, फार्मेसीज़, जहाँ जिनको ऑनलाइन बिजनेसेस में चैलेंज आ रहे थे, उन्होंने वो कॉल सेंटर सेटअप किया। तो इज़ अ स्मार्ट कॉल के नाम से ये सोल्यूशन है, स्मार्ट ऑफिस के नाम से इस इज़ अवेलेबल। एंड इवन एक और चीज़ डिस्कशंस में आ रही थी कि तो डेटा की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड इन्होंने भी शेयर किया कि ओवरऑल जो कंज्यूमर बेस है, एक हर टेलको की अपनी कस्टमर बेस है, लाइक वी हैव 50 million कस्टमर बेस, जैज़ इज़ अ लार्जर कस्टमर बेस, और इस तरह टेलकोस की अदर कस्टमर बेस है। तो नाउ अब डिजिटल एक्विजिशंस पे काम हो रहा है। सो फेसबुक, लिंक्डइन एंड अदर सोशल मीडियम्स आर एक्चुअली गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू सेल आवर प्रोडक्ट्स वाया द प्लेटफॉर्म ऑफ फेसबुक, लिंक्डइन एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। अब जो हमें बिजनेस लीड्स आ रही हैं वो इन प्लेटफॉर्म से आ रही हैं। सो एक और प्लेटफॉर्म ऐड कर दूं इसमें, टैलेंट बीप। ओके, डेटा लेजेंड्स ने रिसेंटली लॉन्च किया टैलेंट बीप। आई डोंट नो कितने लोगों ने उस पर साइन अप किया है। talentbeep.com is going to be the future of Pakistan's LinkedIn, you can say. So I think is good. So the challenge would be the visibility of that platform. तो वो आपको ज़रूरत होगी कि वो जो platforms हैं वो available हों, visible हों, understandable हों, ताकि हम ये open market है, फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। इंडिपेंडेंटली मेरा ख्याल है कोई काम नहीं कर सकेगा आगे। इसमें मैंने काफ़ी मल्टीपल एग्जांपल्स दी हैं, प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन कोलैबोरेट। थैंक यू जी, माइक शेयर कीजिएगा।
मैं एक बात करना चाह रहा हूँ जो हमने इससे पहले कभी नहीं की डिस्कशन में, वो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। और हमारा जो प्रोजेक्ट हुआ नोवार्टस के साथ, वो एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था। इसके अंदर एक टीम बैठी हुई है जर्मनी में, एक टीम बैठी हुई है चेक रिपब्लिक में, एक टीम बैठी है इंडिया में, एक पाकिस्तान में। नहीं ठीक है, एक पाकिस्तान में बैठे हैं, ऐसा ही है। इंडिया में भी हर आदमी 4 अलग अलग जगह पे। सारा प्रोजेक्ट हुआ हमारा, 1.5 साल भर का प्रोजेक्ट हुआ। हमने इम्प्लीमेंटेशन टीम को कभी देखा भी नहीं। मैं जिसको रिपोर्ट करता था जर्मनी चेक रिपब्लिक में, मेरे से शक्ल भी नहीं देखी मैंने उसको। पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ऑन द फोन, ऑन स्काइप, ऑन नेट मीटिंग, जूम पे, और उस पर मीटिंग हुई। पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर। सो ये जो कोविड के आने की वजह से एक चेंज ये भी आया है कि अब really we don't have to sit down and talk and you need to, no need to be face to face for things to happen, and that is happening because of the IT solutions। ये जो networking के solutions हमारे पास आ गए, net meeting की वजह से आ गए, तो changes implementation अब change हो गया। अब वो ये नहीं है कि हमें बैठ कर किसी को समझाना है, सारा फ़ोन पे भी हो सकता है। and Novartis was one example। हाँ नहीं, और कुछ उस कहोगे? टाइम के दौरान में फ्लैश फ्लड्स भी आए और भी चीज़ें थीं जिसकी वजह से Yeah. लोग नहीं भी जमा हो सके एक जगह पे, और फिर भी सारी चीज़ टाइम पे कंप्लीट हुई। हर चीज़ वक्त पे हुई, बिल्कुल। Thank you very much, Ji. Thanks to all the honorable panel members for sharing their views.